I bow my head in the lotus feet of Shri Guru Maharaj Ji. He is an ocean of mercy and is Sri Hari in the human form. His Shri Vachans are like a group of sunbeams which can dispel the dense darkness of great delusion. Fortunate devotees, an assembly of great saints present today at Shri Pragdham Darbar, I make a humble request to gather your senses from all the spheres of life and focus in only and only divine feet of loving Shri Guru Maharaj Ji, being seated today on beautiful and highly elevated throne while enjoying the benefit of his radiant divine glimpses. Let us together sing his sacred glory. Bolo Jaykara bol mere Shri Guru Maharaj ki jai. श्री सतगुरु जी आन पधारे श्री प्रयागधाम, भक्तों को आकर दिया है सच्चे सुख का राज। धन धन भाग सब संगत के जय जयकार मनाते हैं, सुंदर सुंदर दर्शन पाकर बलि बलिहारी जाते हैं, बलि बलिहारी जाते हैं। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। According to Hindu scriptures, there are two forms of God. One, which we can see with the naked eyes, which is called Sakar Rupa Paramatma, which is the physical form of God. We know him by the name of Sadguru. The other one is the one that we cannot see with the naked eyes, which is called the corporeal one, the formless form, Nirakar Rupa Paramatma. Again, it can be experienced with the power of devotion and the sacred name as granted by the Sadguru of the times. The Sadguru incarnates in this world when the devotion begins to decline. When devotion begins to decline, they take the physical form, leave the heaven and come to earth in the form of Sadguru. Who is Sadguru? Sadguru is enlightened spiritual master. He is the one who has accomplished the purpose of life and fully realized the truth of life and is able to guide the others towards spiritual liberty. We are very, very lucky and fortunate that we have enlightening Shri Guru Maharaj Ji in our lives. Shri 108, Shri Paramhan Data Dayal Ji, Shri Pehli Pashahi Shri Guru Maharaj Ji incarnated in this world and wanted to open an establishment which should not only be an institution, it should be incarned as a paradise on the earth. I clearly remember the Shri Vachans of Shri Pancham Pashahi Shri Guru Maharaj Ji. He once said that if ever there is a paradise on the earth, it is Shri Anandpur Darbar, Shri Anandpur Darbar, Shri Anandpur Darbar. A man by himself cannot understand what is right, what is wrong. What is something that belongs to the eternal soul and what belongs to the exterior body? What is something that will go with us and what is something that will stay behind? This knowledge, awareness and consciousness can only be imparted by the Sadguru of the time. गुरुमुखो, जब जीवात्मा को मनुष्य देही मिलती है और वह संसार में आता है, तब उसके पास केवल श्वासों की पूंजी होती है, इस शरीर का कोई नाम नहीं होता। और जब मृत्यु को प्राप्त करता है तो श्वासों की जो पूंजी होती है वह समाप्त हो जाती है और केवल शरीर का नाम रह जाता है। इस श्वासों की पूंजी और नाम के मध्य के सफर को हम जिंदगी कहते हैं। ये जिंदगी किस कारण हेतु मिली है, क्या लक्ष्य है, इसको हम कैसे खूबसूरत बना सकते हैं, इस जीवन को कैसे आचरणमयी जीवन बना सकते हैं, ये भेद केवल समय के संत सद्गुरु ही जानते हैं। जब जीव के पुण्य संचित संस्कार फलीभूत होने पर आते हैं, तब उसको महापुरुषों का सानिध्य मिलता है। कहते हैं, जब आते हैं संत तो आता है बसंत। बसंत क्या है? सत्संग की प्राप्ति। सत्संग से इंसान के अंतरीम नेत्र खुल जाते हैं, उसे सत और असत का पता लगता है। और जब महापुरुष अति कृपा करके उसको नामदान देते हैं, तब से उसके लिए सचखंड के द्वारे सहज ही खोल देते हैं। वाणी में साहेब वर्णन करते हैं,
जो घर छठ गवावना, सो लगा मन माही, जिथे जाई तुद वर्तना, तिसकी चिंता नाही, फाथे से निकले जी गुर के पैरे पाही। साहेब वर्णन करते हैं कि बार बार सोचो और विचारो कि संसार में क्या करने आए थे और क्या करने लग गए। सत्पुरुष जो होते हैं वह धूल धाम को छोड़कर धराधाम पर अवतार धारण करते हैं, जीव को सत और असत का भेद बताते हैं, उनके कल्याण के लिए ही उनका जीवन होता है, सारी कार्यवाही होती है। सद्गुरु फरमाते हैं कि ऐ जीव, तू जिस घर को छोड़कर आया और जहां तूने वापस लौटकर जाना है, उस घर को तू भूला भटका बैठा है और बेगाने घर को अपना समझ बैठा है। ये बड़ी भारी भूल है। इस बंधन से केवल वही जीव त्राण पा सकते हैं जो समय के संत सद्गुरु के चरणों में आ गए हैं और नाम की ओर लेके अपने कल्याण के विषय में सद्गुरु के बताए मार्गदर्शन में वैसा अनुसरण करते हैं। सत्पुरुष निर्भय पद के वासी होते हैं। वे जीव को किसी भी भ्रम अंदेशे में नहीं रखना चाहते, इसलिए यथार्थता का दिग्दर्शन करा के उसको सत्य प्रकट कर देते हैं। आप अक्सर श्रवण भी करते होंगे, हमारे हजूर सद्गुरु दाता दीनदयाल जी अक्सर अपने पावन वचनों में वर्णन करते हैं, कबीर आदि साखी ये कोटि ग्रंथ कर जान, नाम सत जग झूठ है सुरत शब पहचान। श्री गुरु महाराज जी ने थोड़े से ही वचनों में हमें सभी वेद शास्त्रों का ये तत्व समझा दिया कि केवल इस संसार में अगर कोई वस्तु सत्य है तो वो परमात्मा का नाम है। इसके अतिरिक्त जितनी भी कुदरत की रचना है वह असत्य है। जो आपसे बिछुड़ गया वह भी आपका नहीं है। आज जो आपके पास है वह भी आपका नहीं है और कल जो हम पाएंगे वह भी हमारा नहीं है। तो मित्रों, हमारा अपना क्या है? केवल उस परमात्मा का सच्चा नाम। कहते हैं, नाम बसता जिस हृदय में वही सच्चा धनवान है, हित चित से जो करे चाकरी सो पुरुष प्रधान है। मनन करे जो सतगुरु वचनों पर वही पुरुष विद्वान है, सजदे में आ झुकता उसके सारा कुल जहान है। कहने का भाव कि केवल नाम ही सक्षम है हमको सब सुखों की उपलब्धि कराने में। वाणी में वर्णन आता है, गुण गोविंद गायो नहीं, जन्म अकारत कीन, कहो नानक हर पज मना, जह विद जल को मीन। परमात्मा हमें समझाते हैं कि जीवात्मा जो इस संसार में आया है उसका क्या फर्ज है। केवल प्रभु की भक्ति कमाना ही हमारा फर्ज है। ऐश इशरतों को समानों को दिल में नहीं लगाना। यदि जीव की आत्मा का संबंध परमात्मा से नहीं जुड़ा तो सारा समय निरर्थक बीत जाता है। महापुरुष सचेत करते हैं कि इस आत्मा को परमात्मा से हमें किस प्रकार जोड़ना है। जैसे जो मछली होती है जल में रहती है जीवन पर्यंत, उसका सारा पालन पोषण पानी से ही होता है, प्राणों का संचार भी पानी से ही होता है। ठीक इसी प्रकार हमारी सुरती चित्तवृत्तियां सद्गुरु के नाम से जुड़ जाएंगी तो हम भी परमात्मा स्वरूप हो जाएंगे। कहते हैं, संग ना कर राजा का, पता नहीं कब रुला दे, संग कर संतों का, पता नहीं कब हरि से मिला दे। महापुरुषों के बड़े ही सुंदर वचन हैं। जवानी में अदम के वास्ते समान कर गाफिल के मुसाफिर शब से उठते हैं, जो जाना दूर होता है। भावर्थ के ए असावधान प्राणी, तू समय रहते ही इस मनुष्य देही से अपना काम बना ले। अपना काम क्या है? आत्मा और परमात्मा का मिलन। कहने का भाव, जवानी में ही जब तक इस शरीर रूपी पिंजरे में प्राणों का संचार हो रहा है, कुदरत ने तब तक ही नियामत बख्शी है कि परमात्मा के नाम से जुड़कर हम एक रूप हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पे यदि किसी ने प्रातः काल उठ के कहीं दूर जाना हो तो उसकी तैयारी सायंकाल या सूर्य उदय से पहले करनी पड़ती है।
महापुरुष हमें सचेत कर रहे हैं कि जीवन थोड़ा है, स्वाद थोड़े हैं और मंजिल बड़ी ऊंची है। इस ऊंची मंजिल तक पहुंचने के लिए, परमात्मा तक पहुंचने के लिए हमारे श्री दरबार के प्रातः स्मरणीय जगत वंदनीय श्री पंचम पातशाही श्री गुरु महाराज जी ने भक्ति के 5 सरल साधन बनाए हैं, जो कि इस प्रकार हैं। 2 समय की श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सिमरन और भजन ध्यान। साथ ही साथ जो भी गुरुमुख श्री आनंदपुर दरबार का सेवक है, अनुयायी है, उसका ये फर्ज है कि 2 घंटा भजन अवश्य किया करे। एक छोटी सी लीला श्री श्री 108 प्रातः स्मरणीय जगत वंदनीय श्री परमहंस सदगुरुदेव जी महाराज जी श्री द्वितीय पातशाही श्री गुरु महाराज जी की समय की बात है। श्री गुरु महाराज जी नंगली साहिब में विराजमान थे, चौकड़ी लगाकर आसन पे बैठे हुए थे। अकस्मात ही मुस्कुराने लगे तो जो प्रेमी श्री चरणों में उपस्थित थे, महात्मा जन वहां पे खड़े थे, उन्होंने गुरु जी से पूछा कि बाबा आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं। पहले तो श्री गुरु महाराज जी मौन ही रहे, पर जब पुनः उन प्रेमियों ने विनय की तो स्वामी जी ने बताया कि 15 साल पहले एक हमारा प्रेमी था जिसने नाम दान लिया था, परंतु इन 15 साल के दौरान उसने नाम नहीं जपा, परमात्मा की भक्ति नहीं की। आज उस पे विपदा पड़ी है तो वो हमको याद कर रहा है, नाम के माध्यम से हमको याद कर रहा है। आप संसार में देखते होंगे, यदि कोई पिता हो, पुत्र को बुलाए तो पुत्र शायद नजरअंदाज कर सकता है, परंतु यदि पुत्र तीव्र इच्छा रखता हुआ अपने परमात्मा को, सदगुरु को, पिता को याद करता है, और हमारे श्री गुरु महाराज जी तो परम पिता परमेश्वर हैं, तो श्री गुरु महाराज जी ने कहा कि आज हमको वो प्रेमी याद कर रहा है, उसकी मदद के लिए हमको पहुंचना पड़ेगा। तो गुरुमुखो, इस छोटी सी लीला से हमको यह समझ आता है कि हमारे महाप्रभु जी कृपा के सागर हैं, दया के सागर हैं, बदले में हमसे कुछ नहीं मांगते, केवल हमको भक्ति धन से लाभान्वित करना चाहते हैं। इसलिए हर समय यही प्रेरणा दे रहे हैं कि हम नाम से जुड़ें, नियमों से जुड़ें और अपने जन्म को सकारत करें। अंत में यही कहना चाहूंगा, नजरों से दर्शन आपका ये शोहरत है मेरी, हर श्वास पे हो नाम आपका ये दौलत है मेरी, हर जन्म में बस शरण मिले आपकी, बस छोटी सी ये हसरत है मेरी। बोलो जयकारा बोल मेरे। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार अपने मन की समस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए सम्मुख सुंदर सिंहासन पर सोएमान श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों के एवं हाजिर हजूर सतगुरुदाता दीनदयाल जी महाराज जी के परम पावन, परम तेजोमयी सुंदर दर्शन दीदार करते हुए बड़े ही प्रेम सहित मिल करके बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री प्रयाग धाम की पुण्य धरा पर खुशी अनूठी छाई है। सतगुरु जी को सम्मुख पाकर सुरती दिल ही दिल मुस्काई है। दिल का कमल खिल है उठा, भक्ति की अनुपम दात जो पाई है। अमृत वेला में सुंदर नूरानी दर्शन की सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई है। जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्रेमियों, रामायण में वर्णन आता है, चहुजुग 3 काल त्यों लोका, भय नाम जप जीव विशोका। अर्थात कलयुग की ही बात नहीं, वरन चारों युग, 3 काल और तीनों लोकों में जीव जो है नाम जप कर ही शोक रहित हुए हैं। दुखों से जिसने भी छुटकारा पाया है,
नाम की कमाई करके अपने अंदर सुख, शांति, आनंद को प्राप्त किया है। वेद पुराण संत मत एहो, सकल सुकृत फल राम स्नेहो। कि फरमाते हैं कि सभी वेदों, पुराणों और सभी संतों का यही विचार है कि सभी पुण्यों का फल अपने इष्ट देव अर्थात उनके नाम में प्रेम है। प्रेम जो है कैसे उपजता है, परम संत कबीर साहब जी अपनी वाणी में वर्णन करते हैं। प्रेम न वाणी उपजे, प्रेम न हाट विकाए, राजा प्रजा जेह रुचे, शीश दिए ले जाए। कि प्रेम जो है खेतों में, क्यारियों में नहीं उगता, प्रेम बाजार में नहीं बिकता। प्रेम तो वह अनमोल रतन है जिसके मन को भा गया, वह अपने प्राण की बाजी लगाकर उसको प्राप्त करने पर तत्पर रहता है। तो जो प्रेम जो है कैसे हमारे अंदर बसेगा, फरमाते हैं श्वास श्वास में नाम जप, बिरथा श्वास न मत खोए, ना जानो कि अंत का यही श्वास ही होए। कि अपने श्वासों को व्यर्थ मत जाने दो, हर श्वास में मालिक का नाम का सुमरन करना है, उनकी याद अपने अंदर में बसानी है, जिससे कि हमारे हर श्वास सफल हो जाएंगे। एक बार श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाह जी महाराज जी पूना में किसी भगत के घर कृपा की। जब श्री गुरु महाराज जी उसके घर में प्रवेश हुए तो जिस रूम में विराजमान हुए उस रूम में एक झूमर था, वो बहुत ही रोशनी कर रहा था। तो श्री गुरु महाराज जी की दृष्टि उस झूमर की ओर गई तो श्री गुरु महाराज जी ने उस भगत को बुलाकर पूछा कि इसमें कितने बल्ब हैं जो इतनी रोशनी कर रहा है, पूरा कमरा रोशनी से जगमगा रहा है। तो उस प्रेमी ने विनती की, स्वामी जी इसमें 5 बल्ब हैं। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि तभी इतनी रोशनी कर रहा है। तो हम भी आपको 5 नियम बतलाते हैं। इन 5 नियमों को अगर तुम श्रद्धा और विश्वास से अपनाओगे तो आपके बाहर भी रोशनी रहेगी, अंदर भी रोशनी रहेगी। आप जहाँ जाओगे वहाँ रोशनी ही रोशनी होगी। आपका ये लोक भी सुखी होगा, परलोक सुहेला होगा और आपका जन्म जो है सफल हो जाएगा। तो प्रेमियों, हम जीवों पर कितना महापुरुषों के उपकार हैं कि हमें सरल से सरल भक्ति के नियम बतलाए हैं, जिन पर चल करके जीव अपनी आत्मा का कल्याण कर सकता है। तो श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमरन, दर्शन, ध्यान, श्रद्धा सहित जो नित्य करे निश्चय हो कल्याण। और 2 घंटे का भजन अभ्यास हमारे हाजिर हजूर सतगुरु दाता दयाल जी अपने पावन वचनों में हमेशा फरमाते हैं कि 2 घंटा भजन करना सभी गुरुमुखों के लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो इसी प्रकार श्री आज्ञा को मानते हुए अपने जीव आत्मा का कल्याण करें, महापुरुषों की प्रसन्नता के पात्र बने। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों,
अगर आप सभी गुरुमुखों को सत्संग पसंद आया है तो इस सत्संग को गुरुमुख जन तक अवश्य शेयर करें ताकि वह भी घर बैठे बैठे परम लाभ प्राप्त कर सके। सत्संग आप गुरुमुखों को कैसा लग रहा है कृपया कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले सत्संग की नोटिफिकेशन आप सभी गुरुमुखों को पहले ही प्राप्त हो जाए। बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सभी गुरुमुखों को जय सच्चिदानंद जी।